Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Pearls of Iqbal's podcast, Between Noise and Noor, Guiding Muslim Youth Through Identity Turbulence. So, inshallah, we are going to talk a lot about what are noises around us, our youth, what are the lights that we can ignite around our kids, and then how to help our kids and our youth to find their noor, the noise that makes them lose the noor that we as Muslims are blessed with. To begin with, मैं ये पॉडकास्ट को इंशाल्लाह हम सब मिलकर उर्दू इंग्लिश दोनों में रखेंगे so that we can cater to all our audience. मेजॉरिटी हमारी कभी उर्दू में होती है, कभी इंग्लिश में होती है. So we have kept this open and we have our esteemed guests here, inshallah. Sister Rafia Mudassir, Hena Junejo, Hanna Irfan. I'm going to introduce all of them in a while, to begin with Allah subhanahu wa ta'ala's name, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. We all want that our families are blessed and they get all the good things of this world and the hereafter. So one of the signs of the people who are Ibadur Rahman, the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful. So they pray, and this is a beautiful dua that we always begin with, and I'm sure that we all pray, and this is I think the main topic also, if we can understand. कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी अज़वाज को, हमारी औलाद को, हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम, लीडर बना दे. So Lord, bless us with pious spouses and offsprings who will be the joy of hearts and make us models for the righteous. Ameen. So let's just introduce briefly Pearls of Iqbal. This project has been initiated by me. Most of you know me as Dr. Amina Murad. Here, the goal of all our effort is, I have made this Pearls of Iqbal where words become wings. हमारे दुनिया में इस वक्त ग्राफिक्स की बहुत अहमियत हो गई है, लेकिन कुरान के अल्फाज, अल्लामा इक़बाल ने जिस तरह कुरान को डिफ़ाइन किया है, अगर हम उसको समझें तो हमारे अल्फाज हैं वो हमारे पर बन जाते हैं, वो हमारी सोच बन जाती है, वो हमारा तसव्वुर बन जाता है. So Pearls of Iqbal is basically a sanctuary for seekers where Allama Iqbal's timeless wisdom becomes clear, compelling, and soul awakening for the modern heart. Why have we chosen Allama Iqbal? Because Allama Iqbal's poetry describes the Quranic message in a way that it is easy to understand, because it helps us to search our souls, our khudi, our courage. So we have recorded everything. Each video is a journey into khudi, courage, and the awakening of hidden possibilities. Everything is found on our YouTube channel, on our website, if you can go through. So here what we do is, through deep yet accessible reflections, we decode Iqbal's poetry, its spiritual psychology, its symbols, and its revolutionary thought, so that we can regain our lost glory as Muslims and we find confidence in our deen, which is the basis of our identity. So from concise explanations in verse to cinematic reflections, Pearls of Iqbal brings Iqbal's message to life today. So if you love Quran, if you love Iqbal's poetry, if you love spiritual growth through the Quran, you are interested in education, in your self-development, you know what is Islamic philosophy, how can we compare it with the modern Western psychology and the philosophy, so you are at home. So do watch our channel. We have for Pearls of Iqbal Facebook, we have the website Pearls of Iqbal, wordpress.com. You can email us, you can join our group, you can offer your input and your wealth of knowledge. We can have podcast with you as well. We can invite you to our different webinars and programs, because
एज द इनिशिएटर ऑफ पर्ल्स ऑफ इकबाल, ये मेरा यकीन है और ईमान है कि खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। हम सब के अंदर एक खुदी मौजूद है जो समंदर और आसमानों से ज़्यादा वसी है। हम सिर्फ मशहूर लोगों को टैप करते हैं, और हमारे पास जो ख़जाना है वो उन लोगों का है जो हमारे माशरे में खैर फैला रहे हैं और अपनी किसी ना किसी सर्विस से अपने माशरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। So do drop your phone number in the chat box, or join our WhatsApp group, or email us on Pearls of Iqbal, and inshallah we are going to add you up in our group and our programs, inshallah. So let's go back to our program. जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, बिटवीन नॉइज एंड नूर, गाइडिंग मुस्लिम यूथ थ्रू आइडेंटिटी टर्बुलेंस। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात कही है, चमन में तरबियत गुंचा हो नहीं सकती, नहीं है कतरा शबनम अगर शरीक नसीम, वह इल्म कम बसरी जिसमें हम किनार नहीं, तजल्लियात कलीमो मुशाहिदात हकीम। बच्चों की तरबियत जो है वो एक कॉम्बिनेशन है कि जिस तरह ड्यू ड्रॉप्स और सुबह की हवा अपनी मोहब्बत से, अपनी ठहराव से, अपनी ठंडक से फूल को, कली को खिलने में मदद देती है, बिल्कुल इसी तरह अच्छी तरबियत और अच्छी सोहबत और वालिदैन का एक फैमिली का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो बच्चे के लिए उसी तरह है कि हम बच्चे को जब फूल समझते हैं तो फिर हम उनकी अखलाकी, रूहानी, नूरानी तरबियत कर सकते हैं। So, visit and meet our esteemed guest. I'm honored to have our beautiful participants and our esteemed guest here, Hina Junejo. Now, last time she was our guest, Hina. Now, inshallah, you will be joining the podcast as host as well. So, Hina is from Birmingham, Gottman Certified Relationship Coach, educator, and researcher. She's based in Birmingham, a founder of Rehla Wellbeing, passionate about strengthening marriages. She supports compassionate parenting and helps create safer, more connected family environments that enable adults and children to thrive. So reach out to Hina whenever you want to get her as your therapist or as a counselor. Similarly, we have Sister Rafia Mudassir. I'm honored to have her. She's from Pakistan. Rafia Mudassir is a well-known name in education. She is in education leadership with 31 years of experience dedicated to helping individuals discover their innate ability to lead, serve society. And she is internationally accredited by different organizations. She's also the founder and managing director of Nurul Huda Education Consultancy and founder of EdVision Global. And she has initiated programs, they are one of its kind in Pakistan, Leadership 5.0, Classroom Beyond Wales, Udan, and many others. So welcome, Sister Rafia, to our forum. And of course, we have a lovely youth. I'm so blessed and feel happy whenever I have young guests. Like last time we have Hina's daughters. So today we have Hanna Irfan. She's an 18-year-old A-level student, homeschooled, mashallah, enjoys teaching biochemistry and Pakistan studies. And she is currently running a course, and I'm a part of that course, although I have not been able to join yet because of all these programs. But mashallah, she is teaching Canva and video editing and content creation. And she is a contributing writer for the Intellectual Muslim magazine. So welcome, Hana, and all three of you, and inshallah. So let's talk about all the Noor, and I'll start with again Allah subhanahu wa ta'ala's, since we are talking about Noor, so he's the greatest Noor, as Allah himself mentions about him. Allah आसमानों और ज़मीन का नूर है, इसके नूर की मिसाल ऐसी है कि एक ताक है जिसमें चिराग है, और चिराग एक कंदील में है, और कंदील ऐसा साफ और शफाफ है कि गोया चमकता हुआ मोती और तारा हो। इसमें एक मुबारक दरख्त का यानी जैतून का तेल जलाया जाता है जिसका रुख न मशरिक़ है
है न मगरिब है, और ऐसा मालूम होता है कि ये तेल जो है ख्वाह आग इसे छुए या ना छुए वो जलने को तैयार है। अल्लाह ताला का ये नूर है, और अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। और अल्लाह ये जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ है। So now I'll just get off from the sharing mode. Okay. So yes, हमारा जो पहला सवाल है आप लोगों से, और at the end all participants are welcome to ask. Please do throw your questions. हमने ये questions भी आप लोगों के जो भेजे हुए questions हैं उनकी रोशनी में भी बनाए हैं कि ये व्हाट इज नूर, नूर क्या है, नॉइज क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन नूर एंड नॉइज एंड गाइडिंग मुस्लिम यूथ थ्रू दिस आइडेंटिटी टर्बुलेंस एंड क्राइसिस. सो व्हाट इज एक्चुअली नूर फ्रॉम मुस्लिम पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, व्हाट आर दीज नॉइजेस अराउंड अस? So we can begin with Sister Rafia. Would you like to answer? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू समथिंग दैट आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग फॉर लॉट ऑफ मेनी इयर्स. एंड उसमें ये था, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, व्हाट आई फाउंड वाज के लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, दे आर नॉट हैप्पी इन लाइफ इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स. सो आई स्टार्टेड looking at it from the perspective of the individual herself or himself. और पहले तो अपने ऊपर ही काम किया. And I came across, while I was doing my postgraduate certificate course in writing my assignment, I came across the tajweed of Surah Al-Ala, which said that Allah Ta'ala Excuse me, Sister Rafia, your voice, can it be clearer? थोड़ा सा echo हो रहा है. echo इस हो रहा है. तरफ क्लियर है आपा? अच्छा, okay, जी. go ahead. So सूरह अल आला का जो तर्जुमा था और तजवीद जो मैंने पढ़ी, उसने ये बताया कि अल्लाह ताला ने हमें जो है हर तरह की सलाहियतों के साथ पैदा किया है, और वो सलाहियतें जो हैं हमें उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड हो, जिस है उस तजवीद की जो मैं शेयर करी प्रोवाइड करता है गाहे बगाए कि हम स्टेप बाय स्टेप डेवलप करें अपने आप को, अपने अंदर से जो है वो सारी एबिलिटीज को बाहर लाएं, उनको रोशन करें, एंड वी आर एबल टू बेनिफिट द सोसाइटी. सो बेसिकली नूर इज व्हाट अल्लाह ताला हैज ब्लेस्ड अस ऑल विद, एंड इट्स we are all born, all humans, whether Muslims or non-Muslims, हम सबको अल्लाह ताला ने क्रिएट किया. जो रूह हमारे अंदर डाली है, the heart is of goodness, and that goodness resides within us, और वो opportunities और जो हमारी environment है वो उसको shape करती है. So basically उस नूर को ही पहचानना है, उसको ही जानना है कि हमारे अंदर क्या है. And we also understand from now scientific point of view कि बाबा आदम के जमाने से जो भी wisdom है, that is in our DNA, it's part of our backbone. हर चीज मौजूद है, और वही wisdom जो है gradually develop होता है, उसी के अंदर we have to tap into it and find who are we as persons and what is our purpose in life. And unless we find that, we are not able to reach our जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते. So we have to basically look within. So Noor is the qualities of Allah Ta'ala that He has in chunks granted to all of us, like kindness hai, ability to understand hai, knowledge hai. And Allah is the source of all knowledge and all Noor, and we are the beneficiaries. Absolutely, So absolutely. we have to reach that place to understand. Bilkul. I agree with that, Rafia Baji, 100%. You know, as Maulana Rumi said once, one who knows himself knows Allah. And how do we get to know Allah? How do we connect with that nur of Allah subhanahu wa ta'ala? Is by looking at His creations everywhere around us. हमारे आसपास में जो चरिंद परिंद हैं, जो दरख्त हैं, मवेश हैं, माल हैं, इंसान है, मखलूक है, इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये सब चीजें कहाँ से आई, है ना? तो
जब हम इन चीजों के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो फिर हमें इस चीज की बखूबी इस मुद्दे से हम वाकिफ हो जाते हैं कि कोई तो है जिसने इन सब चीजों को तख्लीक किया है, क्रिएट किया है. somebody is the creator out there, and we are the creations really, and we're just mere creations. हमें अपनी असलियत जो है या अपनी असलियत की जो मेननेस है उसका उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी इनहेरेंट फितरा से हम कनेक्ट हो पाते हैं जब हम अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम अपनी इनहेरेंट फितरा के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम एक बबल में जिंदगी गुजारेंगे. वो बबल डिल्यूजन का बबल है. जिस दिन वो बस्ट हो गया तो फिर यही होता है कि हमारी यूथ ना यहाँ की रहती है ना वहां की रहती है. अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि हम अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं. तो एक तो तरीकेकार ये है जो मैंने इस वक्त बताया कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के साथ आप जुड़ के रहने की कोशिश करें. अपने आसपास में जितने भी साइंस हैं उनको आप देखें और अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के साथ जुड़े. इसके अलावा फिर जो दूसरी बात आ जाती है वो आ जाती है पेरेंट्स का. मैं मुद्दा उठाऊंगी कि वी एज पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट? वी आर द वी शुड बी टेक्निकली द ट्रेंड सेटर्स फॉर आवर चिल्ड्रन. However, what is happening in today's day and time is, I mean, we've had these ample discussions before whereby Dr. Amina, yourself, myself, we've been discussing, that the greatest challenge in itself is social media. But according to me, I'm thinking, well, there's something more to it. Social media is just a small part of it, right? The bigger challenge is the constant competition for a young person's identity so they're struggling between moving from noor to the noise. Now, everybody is telling our young people who they should be. उनका मयार क्या होना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उनको किस तरह का दिखना चाहिए, कैसा लगना चाहिए. तो when everybody is telling them who they should be, what do we mean by that? It's the social media, the exposure that they're getting through their friends, the influencers, the society, and sometimes even the family. So growing up in an age of comparison rather than connection is the self-sabotage, not only for our youth, but I'd say for us as parents as well. कितना टाइम हम doom scrolling में लगा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं लगता unconsciously कि हम उसमें डूब चुके हैं और हमारी वैल्यू सिस्टम भी जो है वो तनाजे में आ गई है अपनी जात के साथ, और हमारा वैल्यू सिस्टम भी वही डेवलप होने शुरू हो जाता है based on the external validation that we're getting from these influences or from the society per se. So many youth I'm seeing, in the area of my work, कि they're trying to balance multiple identities. इतना प्रेशर उनके पर पड़ गया है. मतलब जब हम छोटे थे तो हम ये देखते थे कि हम पे भी प्रेशर था माँ बाप का, especially being females coming from a South Asian background. हमारे वालिदैन हमें ये कहते थे कि आप अगर कुछ पढ़ेंगी या कुछ करेंगी तो सबसे ज्यादा इज्जतदार जो शोभा है वो आपके लिए आप टीचर बन जाएं या आप डॉक्टर बन जाएं. तो वो प्रेशर तो हम पे भी था कि वी डिडंट हैव इनफ विंग्स टू फ्लाई. मगर फिर भी चूंकि एक्सपोजर से ज्यादा फैमिली या कम्युनिटी की हद तक था, और वही कम्युनिटी जहां पे हमारे माँ बाप की रहाई और रसाई थी, अब इन बच्चों के ऊपर तो इतना प्रेशर पड़ गया है कि उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि दे basically struggling with multiple identities, moving from between noor to noise. So who am I at school? Who am I online? Who am I at home? When identity isn't rooted in the values, then obviously it becomes shaped by trends. So that's according to me the problem. Noise is anything that pulls you away from who Allah subhanahu wa ta'ala created you to be. Yeah, Noise I think is yeah. from within also. It's not just जो outside factors है, अंदर की जी आवाज भी है, because we are बिल्कुल clashing with our own बिल्कुल personality. भी बात ना, जो नूर अंदर है उससे जो clashes हैं with the environment, with outside, so अंदर की जो आवाज आपको तंग करती रहती है. जैसे मैंने कहा, फ्रस्ट्रेटेड है लोग, नो पीपल आर नॉट हैप्पी, दो दे आर इन द प्रोफेशन दे वांटेड टू बी, उन्होंने सालों गुजार लिए, लेकिन इन द एंड व्हेन दे आर एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइव्स, दे विल नॉट से दैट वी आर सैटिस्फाइड. दे मोस्टली से कि जी हम खुश नहीं है, या हमें ये कर लेना चाहिए था, या हमें वो करना चाहिए था, बिकॉज देयर इज क्लैश विद द गुडनेस विद व्हिच वी हैव बीन born yeah. with, and what is happening around us, and the decisions that we are taking. तो जो अंदर की आवाज है ना, the noise is from within also, which is distracting, disturbing, and causing an anxiety and depression in our youth. बिल्कुल, ये बिल्कुल फितरा आप बात कर रही हैं कि फितरा से हमारा क्लैश हो रहा है, एंड वन कैन नेवर बी हैप्पी इफ देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन फितरा एंड द आउटसाइड
noises because the inner noise wants to expose itself. So, Hannah, what do you think? What are these noises as youth? How have you seen that, felt and experienced and talked to your maybe your friends or your circle? I think like Hina auntie said, they like there are so many multiple things कि आपको social media comparison, all of these things are affecting at the same time. Also, I think Yeah. we say कि noises are around and that stops us from actually embracing our own Muslim identity. But also another thing is that actually I've seen in you they're confused what it means to be a Muslim identity. Like एक figure आता है जहाँ मैं a very pious kind of person does not interact with people or something like that. So that there's also this confusion. And then in this confusion, I think they're more attracted to the noise because they don't know how to figure it out. So they're like, I'll just be distracted by this, like social media and stuff like that. So that's what pulls them more towards the noise. या बिल्कुल अच्छा उनको जो मल्टीपल आइडेंटिटी क्राइसिस भी हम कह सकते हैं ना कि इतनी नॉइजेस ने उनको ये बताया है कि आप कौन हैं, लेकिन वो फ्रेगमेंट इतना वो कर दिया है कि दे डोंट नो. सो हिना, एज यू आर टॉकिंग एंड सेइंग के जो ये मल्टीपल क्राइसिस हैं आइडेंटिटी के, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं और एक के बाद एक लेकर चलते हैं, तो फॉर एग्जांपल आई जस्ट पोर इन माय सम ऑफ द रिसर्चेज आई गॉट. तो इसकी रोशनी में आप लोग अगर आप बताएं कि लाइक आई वाज गोइंग थ्रू द रिसर्च एंड इट सेज दैट अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज studies show a sharp increase in identity confusion age especially between 12 to 19. And अब जो है 2024 के रिसर्च में 22 to 30% इंक्रीज जो है ये हो गया है, जिसमें एज वी डिस्कस्ड अबाउट सोशल मीडिया और कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज एक्सपीरियंस्ड. तो अब ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो अब्रॉड हो, तो जब वो अपने नूर को आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो वो अपने आप को माइनॉरिटी में फाइंड आउट करते हैं. तो हाउ और टू इतना शदीद प्रेशर है उसका ना या अपा. उसको किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना. यू वुड बी आल्सो इंशाल्लाह गिविंग योर इनपुट. Let's say first Hina, then Rafia and Hana. Dr. Okay, Amina, totally. please allow me to share something. This Dr. is Sabia, inshallah, we will take the questions in the end, and I will नहीं, have a question separate. नहीं है, question नहीं. I want to share something about No, the topic. yeah, I know, but please excuse me if we can allow all the participants at the end so that we can finish our conversation, and then the forum will be yours, inshallah. Okay. Jazakallah khair. Well, I think Appa, living in the West and having, children from each child from a different genre, 6 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब 2 मर्तबा twice over दादी भी मैं बन चुकी हूँ. So I can understand the amount of pressure children are going through in that conflicted identity, just to try and get by, to become a part of something which they can call a norm and don't stick out as a sticking sore thumb, right? अब उसमें होता ये है कि अगर बच्चे ये जाहिर करते हैं कि हम मुसलमान हैं तो भी उनके ऊपर प्रेशर है, अगर वो ये जाहिर करते हैं कि हम मुसलमान नहीं है तो भी उनके ऊपर प्रेशर है, बिकॉज वो वही वाली बात कि उनका आइडेंटिटी जो है वो क्रैश हो गया है. कांस्टेंट कंफ्यूजन और प्रेशर के अंदर वो बच्चे आ गए हैं. तो अब अगर हमने उनको, चूंकि वो मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, मुसलमान घरानों को से ही उनका ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि वो नूर को लेके आगे चलें, तो सबसे पहले तो हमारे अपने घर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, जिस तरह से हमने बच्चों को पाला है, जो तरबियत दी है, जो वैल्यूज हमने इनकलकेट किए हैं, हमको उनको देखने की जरूरत है. अगर हमें ये महसूस हो रहा है कि just because the kids are being nurtured and nourished in a Western society, they're being lured or they're being influenced or shaped by the environment outside, तो फिर इसका मतलब है कि as parents हमने कहीं कोई कोताही कर दी है, कुछ छूट गया है हमसे. Of course, parenting doesn't come with a manual either, right? Most of the time we're all trying and testing it out, whatever works for the best, because हमारे भी तो as migrants compounded problems
प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हम अपने घरों को छोड़ के पाकिस्तान से और बैरून मुल्क में आ गए एंड देन उसके बाद हमें एक जो है वो सिल्वर प्लेट मिल गई जिसपे हमें सब कुछ रखा हुआ मिल गया एंड देन हियर यू गो। ऐसा तो नहीं रहा ना। तो जाहिर है कि जब हम खवातीन कंपाउंडेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती हैं, लैंग्वेज बैरियर हो गया, इमिग्रेशन इश्यूज हो गए, जेंडर इश्यूज हो गए, कल्चर इशू हो गया, फेथ सेंसिटिविटी का इशू हो गया, आइडेंटिटी क्लैश हो गया, जब इन सब चीजों को हम डील कर रहे होते हैं तो उसमें समथिंग्स गॉट टू गिव एंड मोर देन लाइकली यही होता है कि घर में जो बच्चे हैं वो सफर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आज मदर्स हमें अंदर टटोलने की जरूरत है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया और क्या गैप रह गया। जो गैप रह गया उसको हम अब फुलफिल किस तरह से कर सकते हैं, उस तरबियत को हम कंपैशनेट पेरेंटिंग के थ्रू किस तरह से फ्लिप ओवर कर सकते हैं ताकि बच्चों को घरों में अपनी माओ की, अपनी बहनों की सूरतों में दोस्त मिले कंपेयर टू आउटसाइड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। घर के अंदर अगर हम उनको जज करना एग्जैक्टली। बंद कर देंगे, कांस्टेंट प्रेशर उन पे डालना बंद कर देंगे, सिबलिंग्स का आपस में कंपैरिजन बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट डेवलप होगा। जब ट्रस्ट डेवलप होगा तो वो खुलकर आएंगे, अपने दिल की बात करेंगे आपसे, आप उनको बिफ्रेंड करेंगे बगैर जज किए हुए, तो एक घर के अंदर हेल्थी एनवायरनमेंट पैदा होगा जिसमें सब लोग एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर लीन ऑन कर बिल्कुल। सकते हैं। अभी तो मैं जब देख रही बच्चे थी कि 35 मिनट्स होते हैं सिर्फ जो पेरेंट्स, एक इनकी वेस्ट की रिसर्च में, हमारा तो ज़्यादा होगा जी इंशाल्लाह, कि दे स्पेंड ओनली 35 मिनट्स विद देयर पेरेंट्स इन 24 आवर्स। तो स्कूल का टाइम देख लें, यूनिवर्सिटी का, पढ़ाई का, सोशल हाँ मीडिया का, बाहर जाने हम्म का। सो राफिया, आप भी जो इंटरजेनरेशनल उसका भी बता रही थी। सो व्हाट डू यू थिंक, जो हिना की बिल्कुल। बात को कंटिन्यू करें अगर आप। नहीं, आई वुड लाइक टू से कि एक तो देखें हमारा फैमिली सिस्टम चेंज हो गया है। वी यूज्ड टू जी बी लिविंग इन joint family system where there were many elders, many role models for our children to look up to. कि चचा से एक चीज सीख ली, ये ताया से कुछ सीख लिया, तो द कैरेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द जी चिल्ड्रन यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कि कोई चीज अगर माँ बाप में, स्पेशली यंग एंड न्यू, मतलब पहला बच्चा घर का है ना, तो उसमें दादा दादी भी अपनी इनपुट दे रहे होते थे, वो सिखाया, लाइक मुझे कुरान मेरे दादा ने पढ़ाया। जी सो उनसे जो चीजें, दुआएं और जो चीजें सीखी उस वक्त, वो आई डोंट थिंक कि फिर एज पेरेंट्स हमारे पास बीइंग वर्किंग पेरेंट्स इतना टाइम था वो बच्चों को देने के लिए। सो दैट इज वन मिसिंग लिंक। और फिर हमारा इवन इन पाकिस्तान फैमिली सिस्टम अब थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है। वहाँ पेरेंट्स आर डूइंग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, they are not there, they are not available to understand the problems। और बच्चों के पास बहुत ज्यादा जो है प्रेशर है, कंपटीशन है, एंड देन कंफ्यूजन, हु एम आई का सवाल। लाइक मेरे पास एक बच्चा आया था, आई हैव बीन डूइंग वेरी एक्टिव काउंसलिंग एंड स्पेशली टीनेजर्स, क्योंकि मैं हमेशा हेड भी सीनियर स्कूल में रही और उसके बाद भी जो है मैं यूथ के साथ काम करती रही। तो वंस अ 21-year-old came and said के who is Allah, लाइक उसको जो था ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ फ्रॉम अ फ्राइडे सरमन, जो ये पैंडेमिक आया और वो घर पे वापस अपने गांव पे वापस गया, और वहां के जो मौलाना साहब थे उन्होंने जिस तरह से भी, सो द वे इस्लामिक थॉट्स या कॉन्सेप्ट्स आर रिलेट। मेरे बेटे के कितने सवाल थे, बेटी के सवाल थे, एक बेटी रोती भी आई कि मिस ने, मैं तो दोजख में जाऊंगी, क्योंकि टीचर, इस्लामिया टीचर है टॉट हर के जो गुनाह करता है, बुरे काम करता है या वो करता है तो वो जाएगा। तो शी वाज एज यंग एज अ 3rd grade स्टूडेंट। सो द थिंग इज के बच्चे को उसकी एज के हिसाब से वो चीजें सिखाना, और सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाना। डर और ये बिल्कुल। खौफ और गुनाह और सवाब बाद और में आता यही है, चीज नूर को ब्लॉक कर रही है हमारे बच्चों में कि हम उनको खौफ ज्यादा डाल रहे हैं। डालते हैं, और उससे फिर बच्चे हट जाते हैं। दे डू नॉट, एंड देन देयर यूज्ड टू बी सिस्टम के नमाज रोजा और ये सारी चीजें, इसकी पाबंदी होती थी घर में, तो वो एक रिचुअल जो था। एंड देन ग्रेजुअली चिल्ड्रन वुड अंडरस्टैंड के नमाज की क्या अहमियत है और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसमें उनको क्या, उनकी बॉडी को क्या फायदा मिल रहा है, उनकी रूह को क्या फायदा मिल रहा है, किस दुआ से उन्हें क्या फायदा मिल रहा है। एंड हमारी बड़ी बूढ़ियां माएँ और जो है वो दुआ पढ़ते हुए खाना बनाती थी, दुरूद पढ़ते हुए बनाती थी, तो वो एक बरकत जो थी, खाने की बरकत, और वो चीज वो भी आपके उसको लगती है ना, रूह को और जिस्म को लगती है। And in the same way, then we used to have these moral stories. I remember my father वो कससल अंबिया और सहाबा के किस्से, और ये वाली इशा के बाद
वो एक सेशन होता था जिसमें हम बैठते थे और वो सब सुनते थे. सो वी हैव अ वेरी क्लोज, मतलब एक मोहब्बत है ना अपने मजहब से, अपने मुल्क से. तो वो एक गुट्टी में जो है मिली हुई. तो ये जो चीज है, फिर व्हेन यू नो एंड देन यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन एंड एलिजियंस टू योर रिलीजन, टू योर कंट्री, व्हेन दिस हैज बीन इनकलकेटेड फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज. बिल्कुल एक सेंस ऑफ एग्जैक्टली. बिलोंगिंग मिल जाता है ना बच्चे को, राफिया बिल्कुल. बाजी. तो ये तो एक क्या कहते हैं कि हेलीकॉप्टर बेसिक पेरेंटिंग का नीड जैसे है. पूछा, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज दैट आप आए, आपने अच्छा खाना खा लिया या आपने चीजें प्रोवाइड कर दी और जस्ट बाय द वे जो है चीजें पूछ ली, बट यू आर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन. और ये आई पिक एंड फाइंड ड्रॉप इमोशनल. भी, कि अभी यहाँ छोड़ा, अभी वहां छोड़ा, अभी ट्यूशन से लेकर आए, अभी ये किया, तो बस वो एक हेलीकॉप्टरिंग ही हो रही होती है ना? व्हाट डू यू थिंक? I think also one thing that I feel like parents often ऐसा नहीं होता कि they don't tell about Islam. Obviously, they will tell कि जैसे आपको हिजाब पहनना है at a young age, namaz, all of these things. But in some cases, I've seen like children जिनको they know what they have to do कि भाई इस्लाम में है. तो अगर आप उनसे बोलेंगे कि ये जो तुम कर रहे हो this is haram, they would say कि I know this is haram. But I think the issue comes when they're just told what they have to do without completely understanding कि जैसे आपको क्यों करना है, किसके लिए करना है, not for your mom or dad and उनके या. सामने कर लिया वो खुश हो जाएंगे. And इसी की वजह से फिर a lot of the people who I've seen कि they leave hijab and stuff like that, it comes from the fact कि उस वक्त they just did it because their parents or whoever was telling them to, but later it becomes easy if you're not doing it अपने खुद के will से. तो बिल्कुल. यानी बेसिकली हमारे यहाँ से वाई भी काफी मिसिंग होता है. हम ज्यादातर बच्चों को, अपने टीनेजर्स को भी बस ये करो या ये नहीं करो, इसलिए कि वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में ये भी आ जाता है कि वी डोंट हैव मच टाइम टू to एक्सप्लेन. make them understand. हाँ, क्योंकि बच्चे दे आर एनालिटिकल, दे वांट टू थिंक, दे वांट टू नो द रीजन. और वो जो इंसान की जो खुदी है, उसके अंदर ये तजस्सुस होता है. जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी का नशेमन तेरे दिल में है. तो बच्चा जो है वो एक कहना चाहिए कि जेनेरिक ही वो एक क्यूरियस होता है. तो जैसे जैसे बड़े होते हैं और एक्सपोजर होता है, और हम देखते हैं कि टीन एज में बच्चे की जो रिलेशनशिप होती है वो फैमिली से कम हो जाती है और अपने फ्रेंड से ज़्यादा हो जाती है. अच्छा, अब जब वो बच्चे निकलते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि वो नूर तो ना मीडिया पर है, वो नूर ना सोसाइटी में है, और वो नूर जो है वो घर में है. लेकिन वो नूर को एक जो स्प्रेड आउट जिस तरह मोहब्बत से होना चाहिए, तो वो जो मोहब्बत कुरान का एक आई थिंक सेंट्रल मैसेज है. और अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा है, जिस तरह कुरान में अल्लाह कहते हैं वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं. एंड इफ़ यू ट्रांसलेट दैट मोहब्बत, इट इज़ द लाइट, कि अल्लाह जिसे चाहे अपने नूर से हिदायत देता है. तो पेरेंट्स ने या हमारे कल्चर में जो रिलीजन है वो एक रिचुअल बन गया है. और वो जो एक उसके अंदर जो हमारे बच्चों में, हमारे अंदर एक मिसिंग एलिमेंट है, हमारी एजुकेशन सिस्टम खास तौर पर वो स्पिरिचुअलिटी को निकाल देती है, और वो स्पिरिचुअलिटी को बाउंड कर देती है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज में एज अ रिचुअल. तो है ना, आप ये बताइए कि ये गैप कहाँ है स्कूल्स में? आपको करिकुलम में किस तरह नजर आया? कॉलेजेस में यू आर अ होम स्कूलर बट यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड यू रीड अ लॉट, और मीडिया पे अगर आप टिकटॉक पे जाएं, आप इवन जिस तरह सिस्टर राफिया ने कहा फूड कल्चर में, कि वो फूड कल्चर में भी हमारे पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर से बहुत ज़्यादा मंगवा कर देते हैं. तो वो तमाम चीज़ें, हाउ डू यू सी दैट, व्हाट आर द इफेक्ट्स? You're basically asking like why is there increasing gap to how Yeah, the things are affected. Yeah. exactly. एक तो like you said जो curriculum है. For example, how I did Islam and I did it with my mom. I didn't do it with a teacher, so she explained it in her own way. But
generally like how the syllabus is designed. So Islamiyat ka syllabus is all about, it's the perfect time ke aap Islam se you gain that love for Islam. It does obviously give that to you, but it's taught in this unrealistic way. You know, these were great people who did great things, and again it's limited to namaz, roza, hajj, zakat. कि ये लोग ये सब करते थे, and these were nice people. And then you think about it, कि, you know, for example, Hazrat Zaid bin Sabit, he was so young when he did all of these things, like being a scribe and stuff, and you don't find yourself immediately relate. आप सोचते, you just go in that own guilt कि मैं तो ये सब नहीं कर सकती, and एक disconnect आ जाता है कि oh I can't be them. So you know, फिर एक feeling आती है कि oh, हम तो ये कर ही नहीं सकते, इस level पे जा नहीं सकते. So I feel like even our syllabus में ये missing part होता है, how it can connect to our lives, how we can be the same in, you know, different situations. We don't have to be a scribe right now, but in our Can I own way. And not can I intervene as an Islamiyat teacher? Islamic Studies, Cambridge. Can I? Later, please. All right. Jazakallah khair. We'll have a session where you can all give your excellent inputs, inshallah, and your wisdom. also I've noticed this thing in our media, not just social media. Social media mein to phir all the Western culture, etc. the people are seeing, but in our own Pakistani media, there's Ji. this been new trend in the recent dramas and all. They have started to show these haram concepts even more in a very nice and friendly, relatable way. This, for example, relationships, boyfriend, girlfriend. This has become a common theme and not introduced in a negative way. You would have seen it being negative in a third past wale dramas, but I mean, recent dramas where the parents who cooperate with their children, let them have relationships, it's shown in a good light. So this is, for example, a person who's seeing this drama, seeing a normal Pakistani person do this, उनके दिमाग में तो यही आएगा कि मतलब, you know, maybe I'm the one who's weird कि मैं ये सब नहीं कर रही, या Exactly. it's there's this confusing line कि फिर क्या चीज actually कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते. And just even जो religious roles दिखाते हैं मीडिया में, in most of the even ads वगैरह में या ड्रामों में जिसमें भी, this religious figure is the one who जो कि बिल्कुल एक white दुपट्टे में, usually they show elder people being the religious people, Hindu जिसमें भी there's होगा. हाँ जानमाज पे किनारे में तस्बीह जी. पकड़ी हुई, and they're just constantly praying out the whole day. So you think भाई मैं तो बन ही नहीं सकती, I have to study, I have to do these things, and फिर study आपको लगता है कि it's something unreligious, while you actually, if you do it with the right intention, it can also be an act of worship. So Absolutely. I think that's all there's this बिल्कुल, disconnect. that's a very important point. हमारे मीडिया से, एजुकेशन से आइडियल्स और रोल मॉडल्स निकाल दिए हैं, चाहे वो पर्सनालिटीज हो, चाहे वो वैल्यूज हो, और उसकी जो वजह बेसिकली जो आइडेंटिटी क्राइसिस है. इवन एज टीचर्स बच्चों को बहुत जी. अच्छे रोल मॉडल्स नहीं मिल रहे. The young teachers that I see in schools now these days, especially for the teens, जो जी. पाकिस्तान में सिनेरियो है, तो वो भी तो they इसी have कल्चर very से निकल रहे हैं ना. जी बिल्कुल असल very मसला less ये, क्योंकि देखिए हम जो रह रहे हैं वो एक कैपिटल सिस्टम में अब है, जहाँ सेक्सुअलाइजेशन हो चुकी है, जिस तरह अभी हना ने बताया, कमोडिफिकेशन हो चुकी है, कंज्यूमरिज्म कल्चर अपने उरूज पर है. हमारे आजकल का जो स्लोगन है कि कुछ नया हो जाए, मज़ा जिंदगी का, तो ये पूरा कल्चर इस तरह डाला है कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपने अगर ये काम नहीं किया तो आप बहुत जॉय को और बहुत लज्जत को मिस कर रहे हैं. तो वहाँ फिर हलाल और हराम की बाउंड्रीज ख़त्म कर दी, और ये इंटेंशनली ड्रामास के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, टिकटॉक कल्चर में, जिसमें अब हर आदमी जो है वो अपने 2 सेंट्स लेकर आता है, चाहे वो शैतानी अमल क्यों ना हो. तो नेचुरली हमारे बच्चों में जेंडर आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है, लड़के लड़कियों के दरमियान, जिस तरह बता रही हैं कि भाई कोई बैरियर ही नहीं है, और अगर आप बैरियर कायम करते हैं तो यू आर आइसोलेटेड. अच्छा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है,
अच्छा तुम ये प्रॉम्स में या पार्टीज में, और अच्छा ओके, oh we are just taking drugs, because I was talking to some students and they said that it has like become a social etiquette, जिस तरह आप कहते हैं कोक पी लें, पेप्सी पी लें, तो आप अगर ड्रग्स की बुनियाद पर अपनी फ्रेंड्स से आइसोलेशन और चूज करना चाहें, आपको मिलेंगे ही नहीं, मेजॉरिटी आर इन्वॉल्व, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पाकिस्तान, नॉट हियर। तो ये जो इतना कल्चरल शिफ्ट हुआ हुआ है और ये क्राइसिस हुआ हुआ है, तो ये क्राइसिस इतना मामूली नहीं है जितना हम समझते हैं, कि उसमें बेशक हम कह लें कि डोपामीन का भी कसूर है कि ये देख रहे हैं और ये हो रहा है, लेकिन वहाँ फूड कल्चर का भी जो है रोल आ जाता है, क्योंकि जिस तरह लास्ट ईयर मैं देख रही थी, फूड पैंडा ने कहा था किचन को ताला लगाओ। So these are very, conscious slogans that are unconsciously presented, और वो जो है अब हमारे नौजवानों के लिए आइडियोलॉजी बन गए हैं, और यू आर द आइडियल्स एंड रोल मॉडल्स आर प्रेजेंटेड थ्रू द मीडिया। Yeah, Mentors absolutely. And नहीं है, then like again, students often complain of not finding a good mentor, especially ये आपके youth जो है, जो यूनिवर्सिटी में नए enter होते हैं बच्चे, um, even at A levels, they do not have very good mentors. Like if they want Yeah. to learn something, अपने आप को बेहतर करना है, कोई skill सीखना है, confidence gain करना है, so they do not find very good advice or people who can mentor. पहले जमानों में आपको याद होगा, हम पढ़ते हैं उसका कि खानकाएं होती थी, बच्चे को 13 साल की उम्र से भेज दिया जाता था किसी स्कॉलर के पास, किसी उसके पास, बिल्कुल। to learn. And that learning was not just learning of ilm or fiqh or ये सब चीज, बल्कि it was pure development of personalities and character. सोहबत जिसको कहते हैं ना, सोहबत, जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है ना, बिकॉज नाउ आवर चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग एनी, और उसके बेसिस भी अगर आप देखें कि द एंटायर एजुकेशन सिस्टम हैज बीन कमर्शलाइज्ड। मैं तो इस बात बिल्कुल के भी सोचती हूँ के खिलाफ हूँ कि अगर कोई आपके पास मेंटोरिंग के लिए आता है या कोचिंग के लिए आता है, या कोई आपके पास अपनी इमोशनल एंजाइटी और इसकी सोल्यूशन के लिए आता है, हम उसको क्लाइंट क्यों कहते हैं? सो वी हैव स्टॉप्ड thinking of human beings as a part of our own self, our own community. वो तो हमारे लिए एक किराएदार बन खत्म गया हो है, गई। हमारे लिए एक गाहक बन गया है, हमारे लिए एक सारिफ बन गया है, हमारे लिए एक कैपिटल सिस्टम का है कि हम इसको कैच कर लें। तो ये पूरी साइकोलॉजी हो, चाहे कोई सोशल साइंसेज हो, ये एक तो ये है कि ये तमाम के तमाम वेस्टर्न उस पर हैं, तो नेचुरली आर चिल्ड्रंस आइडियल्स, यू नो like I was once talking to a student, she had done her psychology, masters in psychology, तो मैंने कहा आपने कभी सोचा कि आपने जो फ्रॉइड का पढ़ा है और इसकी अगर आप डेप्थ में भी जाएं, तो ये तो सब अपने रिलीजन से भी बागी लोग थे, और इन्होंने जो थियरीज की है वो तो पूरी एनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ की है, वेयर वी हैव बीन डीह्यूमनाइज्ड। वो कहती है अच्छा मैडम, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें तो इस तरह पढ़ाया गया कि नाउज़ बिल्लाह, फ्रॉइड अगर मुसलमान होते तो शायद वो पैगंबर होते। अब जाकर लोगों को शऊर आ रहा है, नाउ इस्लामिक साइकोलॉजी जो है इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और द इस्लामाइजेशन, आई वुड नॉट कॉल इस्लामाइजेशन, क्योंकि हमने तो उसको पहले चेंज किया। तो ये जो है ना, माई क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो सटल तरीके से ये तमाम के तमाम चीज़ें हमारे अंदर, हमारे बच्चों में इंडॉक्ट्रिनेट की गई हैं, और आई वुड से हैमरिंग की गई हैं, बिकॉज यहाँ आपको सोचने के लिए ग्राउंड नहीं दिया जाता है। तो हाउ अनकॉन्शियसली डू यू थिंक दैट आवर करिकुलम इज प्लेइंग ऑन आवर चिल्ड्रंस एंड आवर यूथ हार्ट एंड सोल? It definitely is. Even just if I like psychology generally, like therapy, ये सब चीजें they interest me. But I also know that aspect जैसे अभी आपने Freud का जिक्र किया, my mom is also interested in these things. But उन्होंने मुझे बोला कि until आप सही से पहले अपनी Islamic values को नहीं ले लो, I wouldn't recommend that you take up psychology as an A-level subject. Because she knew that right now at this stage, I know my Islamic values, but I am at the stage that I'm very
susceptible कि मैं एक चीज सुनूंगी and I will probably, if I like it, I'll be impressed by it, I'll make it my own concept. So she was like, first I need to prepare you with, what's our own Islamic values about this before you can even do psychology as a subject, which I am lucky that my mom did that for me. But I know many people admit that they do not just psychology, but other fields या Any subjects जो subject, भी yeah. exactly जैसे science में some specific things. So especially if they don't have the right teacher, so like even just a Pak studies hai, it's a subject that I myself teach now. So I realized the way the textbooks are written, like the wordings, I've noticed it while I was teaching. When they address something Indians did, it's written in a very like, बहुत uncivil लोग थे, कैसा attitude था. And when British do something, it's labeled as one officer did it. It wasn't like the whole British did. Yeah. So in the whole curriculum, they've designed it to make us feel like that कि कोई भी पढ़ते हुए अपने आप को अपनी उसको heritage ना याद आए, उन्हीं से हम impressed रहे and we continue to not बिल्कुल। realize there are some problems. colonization of hearts and minds and brains। और अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, इसमें मुझे याद आया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि इन्होंने रिसर्च की कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। हाँ, शुक्र का ऑफ कोर्स वी नो दैट सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कुरान का जो है वो उस पर है। तो इसको इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत तरीके से और पेश किया कि व्हेन यू आर इन ऑ you feel happy, you are in awe of nature, you are in awe of flower, you are in awe of the beauty around you, जिसको अल्लामा इकबाल ने हुस्न से ताबीर किया है कि एक बच्चा जो है वो शमा और बच्चा, एक बड़ी खूबसूरत नज़म है। मैंने अभी उसको सुबह ही यूट्यूब पे अपने पोस्ट किया है, आप लोग देखिएगा। तो उसमें वो कहते हैं कि तुम शमा को देख रहे हो और इतनी हैरानगी से, तो किस चीज़ की जुस्तजू है, क्या तुम इससे पहले से वाकिफ हो? और फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हुस्न जो है वो कतरे में भी है और दश्त में भी है और सहरा में भी है और फूल में भी है। बट इन द एंड वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो इन चीज़ों से भी इसलिए सेटिस्फाई नहीं होता है कि असल जो और हुस्न है वो अल्लाह की ज़ात है। तो उसने अल्लाह को देखा हुआ है अपने यौम अलस्त पर, अहद अलस्त पर। सो the fitra knows what is the ultimate beauty. The fitra knows what is the ultimate character of Allah's 99 names. The fitra knows who is the greatest knowledgeable entity in the entire universe. The fitra knows that it has to have that awe and that obedience and that submission to the highest authority. तो हमारे अंदर वो जो, मैं अपने बच्चों को भी अक्सर कहती हूँ कि आप कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई ड्रेस देखते हैं, कोई पार्टी देखते हैं, कोई नई एंटरटेनमेंट देखते हैं, एनीथिंग, आप कहते हैं वाओ। Now that wow is for all the artificialities of the things around us. So we are in awe of that artificial, superficial things that do not satisfy us. So इकबाल कहते हैं कि we are like माही बेआब, हम ऐसी मछली की तरह हैं जिसको पानी से निकाल कर समंदर के बाहर जमीन पर, सहरा में, रेत पर फेंक दिया गया हो। तो ये जो आइडेंटिटी, सॉल्यूशंस की जो आप बात करी थी ना, तो उसमें फिर यही है दैट वी नीड टू गिव टाइम टू आवरसेल्व्स टू लुक हाँ, अब विदिन, आप सोल्यूशन बताएं फिर। बिल्कुल, to reflect on ourselves, to look around us, appreciate our surroundings, appreciate other people. मतलब ये कि आप जब तक खुद अपने आप को नहीं पहचान लेते, then you are not able to see the beauty in others. उसके अंदर कौन सी अच्छी खुसूसियात है, क्या उसकी अच्छी ability है, and you're not able to appreciate that. And the same way, वो चीज ना, you need time for yourself. तो वो जो noise है, उस noise को कम करके सुकून की कैफियत में आने की ज्यादा जरूरत है, which comes when you are praying, जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब आप इबादत कर रहे होते हैं, जब आप you are in nature or you are with the closed ones, the ones who जो आपकी close family है, उसके साथ बैठ के जो time आप गुजारते हैं, so then you are start appreciating all the blessings that you have, and you start finding beauty in them. Yeah, Hina, जैसे Hina, what हुजूर do you पाक think? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जी, मैं भी यही, आई वाज जी, एकोइंग एक्चुअली व्हाट क्या राफिया सोल्यूशन बाजी क्या है? मेंशनड हाँ, अर्लियर। आपके जहन में क्या सोल्यूशन है इसका? तो कुछ चीजें तो जो कि राफिया बाजी ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी से कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, सो चेंज बिगिंस फ्रॉम होम एज वेल। एज पेरेंट्स वी नीड टू बिकम मोर कॉन्शियस कि हम बच्चों के अंदर जो इनपुट डाल रहे हैं, जो उनको फीड कर रहे हैं, लिटरली एंड प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इन द सेंस कि जो फास्ट फूड हम ला ला के उनको खिला रहे होते हैं उनका पेट भरने के लिए, वो सब प्रोसेस फूड है। न उस पे दुआ पड़ी गई, न दुरूद पढ़ा गया, न बिस्मिल्लाह पढ़ा गया। सो वी आर जी, व्हाट वी ईट, राइट? तो एक तो उस चीज को हमने एग्जैक्टली। खत्म करना है। दूसरी यानी एक चीज है कि नूर हुजूर है, पाक। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि वो जी, नूर जो है वो हलाल और तैयब, तो वो बहुत बड़ा नूर भी हमारी जिंदगी से इस नॉइज में मिसिंग आउट हो रहा है। या कैरी ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी चीज के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिमाइंड किया था कि वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज अराउंड अस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज पेरेंट्स एंड आवर यंगर जनरेशन टू आस्क दिस क्वेश्चन कि do our friends bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, or are they drawing us away from Allah subhanahu wa ta'ala? तो वहीं हमें जवाब मिल जाएगा कि हम सही कंपनी में कि हम गलत कंपनी में। ये दूसरे सोल्यूशन हो गया। तीसरा सोल्यूशन ये कि हमें अपने बच्चों को जो है वो हेल्थी बाउंड्री सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है न, और बाउंड्री सिर्फ घर के बाहर नहीं, घर के अंदर भी, है ना? कि टीचिंग यंग पीपल बिल्कुल। दैट बाउंड्रीज आर ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग पीस, नॉट पुशिंग पीपल अवे। तो जब हम उनको बाउंड्री सेट करना सिखा देंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी अट्रैक्टिंग पीस विद इन एंड दे विल बी पुशिंग दैट नॉइज आउटसाइड वाया सेटिंग हेल्थी बाउंड्रीज। कि उनको फील होगा कि नहीं जी, दिस इज नॉट फॉर मी, this is not what my parents taught me, this is not a part and parcel of my values framework, hence I do not belong here, and this set of values or this noise does not belong in my internal circle of influence। तो वहां पे फिर जो है वो बाउंड्रीज काम आ जाएंगी। तो every time you say yes to everyone else at the expense of yourself, you're saying no to your own well-being। ये बात आ जाती है वहां पे या जहाँ पे राफिया बाजी ने भी कहा ना कि अपनी जात के साथ जुड़ना और अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम एज पेरेंट्स, एज खवातीन अपनी वेल बीइंग के अंदर जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे कॉन्शियसली, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम अपनी सेहत भी गंवा रहे हैं। एंड हम पूरा जो घर है, जो पूरे घर का एक वो है फ्रेमवर्क है दैट रिलाइज ऑन अ वुमन शोल्डर्स। सो इफ वी नॉट कॉन्शियसली इन्वेस्टिंग इन आवर ओन वेल बीइंग, वे अनकॉन्शियसली नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग आवर ओन सेल्स, वे डिस्ट्रॉइंग द होल फैमिली एंड होल जनरेशन। और वहां पे फिर जनरेशनल ट्रोमा की बात आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रियलाइज करें एज मम्स के हमारी जो जो हमारा रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ एंड मदर। एज फादर्स ऑल्सो, फादर्स को भी, क्योंकि हम हर चीज मॉम्स पे ही डाल देते हैं। तो आई थिंक हम अगर फैमिली की बात करते हैं तो हमें मर्दों को भी ये एहसास दिलाना है कि उनका भी जो रोल है, खासकर लड़कों को मैं देखती थी जब स्कूल में भी, कि उनके पास अब मेल रोल मॉडल्स नहीं होते हैं। और जब वो नहीं होते हैं तो दे आफ्टर अ सर्टेन एज, लाइक आई व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन, कि आफ्टर द एज ऑफ 10 दे स्टॉप आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद फीमेल्स। और अगर वो फीमेल्स ही में रहते हैं तो फिर उनका जो एक मैनहुड होता है वो खत्म हो जाता है। तो फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आई सपोज के एस्पेक्ट है। सॉरी, बिल्कुल। नहीं मुझे नहीं, याद आप है बिल्कुल ना, ठीक तो कह रही हैं। कैरी आप, ऑन। इट्स जस्ट दैट मम्स आर बेसिकली द प्राइमरी केयर गिवर्स इन द हाउस। तो उनकी जो कनेक्शन है बच्चों के साथ या जो मी टाइम है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू डैड्स। नाउ दिस मे बी ट्रू बैक इन द डेज जबकि खवातीन घर में होती थी, उनका काम था घर के अंदर का और मर्दों का काम था घर से बाहर। तो 9 से लेके 5 बजे तक मर्द हजरात घर से बाहर थे। जब बच्चे घर आते तो उसके बाद फिर उनका सोशल सर्कल जो है वो माँ ही बन के रह जाती है ना। तो इसलिए मैंने माँ की मिसाल दी, मगर दैट इज नॉट द केस इन द वेस्टर्न कंट्रीज एज यू वुड नो योरसेल्फ। यहाँ पर हम खवातीन जो है वी प्ले द रोल ऑफ अ मम, वी प्ले द रोल ऑफ अ डैड या एज वेल मेनी टाइम्स, है ना? तो सो एसेंशियली वी नीड टू एक्चुअली स्टॉप बीटिंग आवरसेल्व्स टू मच, है ना? हमें अपने माइंड को भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो हमने खुद से भी तो ये सवालात करने कि हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, डज दैट इंस्पायर अस, डज इट तो हम इंक्रीज बच्चों आवर को एंजाइटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो लोअर? नहीं देते हैं ना। बच्चे बिल्कुल। खाना खाते हैं, वो अपनी प्लेट नहीं उठाते हैं, बच्चे कपड़े चेंज करते हैं वो वहीं छोड़ देते हैं, शूज निकालते हैं, वो तो उनके लिए कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। तो इससे जो उनको अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि वो जब बाहर भी जाते हैं तो वो किसी भी चीज के लिए अपने आप को, किसी भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते कि इसकी ये कॉन्सिक्वेंस होगी, क्योंकि घर में उसकी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना। दे आर नहीं। enjoying all the privileges.
तो बिल्कुल, और हम हमने रख भी नहीं सकते कॉन्सिक्वेंसेस आपा, बिकॉज द नेक्स्ट थिंग यू नो इज के अगर आपने बच्चे को झड़क दिया उसको डिसिप्लिन करने के लिए, तो वो यही कहता है कि जी आई एम गोना कॉल द चाइल्ड लाइन। फिर आप क्या करेंगे? तो ये भी बहुत बड़ा वो तो एक मामला है वेस्ट का जिससे हम अलमिया है ना कि हम फितरत से बिल्कुल हट गए हैं। और फितरा लेकिन से यही हट गए। चीज हमारे पाकिस्तान में भी यही हो रहा है ना कि पेरेंट्स एब्सोल्युटली। बच्चों से डरने लगे। ओके, वी हैव a few minutes and then inshallah the session will be over to our participants. They are eagerly waiting. So Hannah, what is the solution in your uh, I what do you think think? like Nancy said कि जो हमारे around लोग होते हैं, I think that's really important. And a lot of the, even like in my friends and the other youth I've seen, that you can be raised very well, आपकी तरबियत अच्छे से है, you've been taught your values, but the people that surround you, they affect you so much कि you eventually you just become with who you are with. जैसे वो जो prophet की, I think I don't remember the exact words or anything, but जैसे जो मिसाल है कि blacksmith के पास अगर आप रहोगे, आप खुद blacksmith तो नहीं हो, जी, but when you come out of that place, you're gonna get stained. Meanwhile, in a perfume बिल्कुल, seller shop में आप होंगे तो आपके अंदर से खुशबू आएगी, even though you're बिल्कुल, not the perfume seller yourself. तो this is really important कि आप जिसके अराउंड हैं, आपका जो फ्रेंड ग्रुप है, आप उसमें एक तो अपने ऊपर कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ के have I changed with them, you know, was I did I used to do these things जब मैं करने के लिए ready हो रही हूँ. Even small things like using some particular slang words जैसे जो आप उनके साथ pick up कर लेते हो, फिर it turns on to, बिल्कुल, it just goes. And also one thing to say, um, like at my home, you said it's a 35 minutes, like go ahead, rough estimate of in the West. As a homeschooler, my mom used to be with me 24/7. So I was taught those Islamic values, but still I think there's this thing, UK society, like there's this, it's not like things are affecting around us, they're like pushing towards us, like you said, hammer kariye, the society, the media, everything. So constant reminders by the parents are also necessary. I say this even though I get irritated whenever my mom says, "Kehna, aap kya se baal dikhte hain, sahi se dupatta pehno." At that moment, I get irritated. But then I see other people in the youth, they don't get corrected and stuff. And फिर वो एक छूटती है चीज और फिर उसके बाद it just gets on dupatta, then abaya, then it just goes on forward. So I think वो बिल्कुल, छोटे reminders, even though they're very irritating at that point, कि अभी नमाज पढ़ो, बाद में नहीं पढ़ना, लेकिन I think those are also necessary. वेरी नाइस। तो यानी बेसिकली अब इंशाल्लाह हम इस पे अपनी टॉक कंक्लूड करते हैं कि हमें जो नॉइज हमारे बच्चों को है उसको वो एज अ कोल भी आइडेंटिफाई करें कि ये जो कोयला है ये आपकी खुशबू को मुतासिर कर रहा है। और आपके अंदर जो खुशबू है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपना नूर है, तो जब सोहबत चाहे वो गेम्स की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो फ्रेंड्स की हो, चाहे वो मॉल में बिला वजह कंज्यूमरिज्म के चक्कर में जाने की हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो म्यूज़िक की हो, चाहे कॉन्सर्ट्स की हो, और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर उसको अगर हम एनएलपी में जब मोडालिटीज़ को ये करते हैं कि इफ़ यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड इमेजिनिंग कि उस कोयले के अंदर से आपका नूर जो है वो कवर हो रहा है, आपकी की जो खुदी है उसके अंदर जो अल्लाह ने इतने पोटेंशियल्स रखे हैं, तो दीज आर ओनली द टाइम वेस्टर्स एंड आई एम वेस्टिंग माई सेल्फ। तो और कुरान को अगर समझ कर पढ़ें और जस्ट एन आया वीक भी ले लें कि आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर एग्जांपल, अगर हमने शुरू में आयत पढ़ी कि अल्लाह चाहता है वो जिसे चाहता है अपना नूर देता है, तो एक चीज है कि फिर अल्लाह दूसरी जगह कहता है कि अल्लाह उसे ही देता है जो वो चाहता है। So तो back to फॉर our मी द ancestral नूर ऑफ wisdom द also. लाई वीक इज के ओ अल्लाह, ओके दिस वीक आई एम गोइंग टू सीक दैट परफ्यूम, दैट नूर, एंड आई वांट दैट फ्रॉम यू इंशाल्लाह। सो What you're जज़ाकुमुल्लाह seeking is खैर। seeking you. जी, अब मेरा ख्याल में दे आर एंशियसली वेटिंग, तो आप यू आर ऑल देयर टू आंसर देयर क्वेरीज एंड देयर वट एवर देयर इनपुट्स। So, all right, the forum is for you. So, yes, Dr. Sabiha, I think you're the first one, and then you can please raise your hand, open your mics, and one by one, give जी, your.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बेहतरीन टॉपिक था ये, और मुझे इससे हैरत भी हो रही थी कि मैंने 2000 में एक नज़म लिखी थी इसी टॉपिक के हवाले से, जो आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। एक आज़ाद नज़म थी। इस हुजूम के शोर में मेरी खामोशी, मेरा सुकूत करवट करवट तड़प रहा है। मेरे घर के हर कोने में, मेरे घर की हर दहलीज पर, मेरे घर की हर सतह पर बाहर की बेचैन दुनिया खड़ी है। समंदर पार के जख्म, उफक पार की चीखें, मशरिक की बेकरारी, मगरिब की बेजारी मेरे घर के चप्पे चप्पे से लिपटी हुई है। बाहर की बेचैन दुनिया खड़ी है। समंदर पार के जख्म, उफक के पार की चीखें, मशरिक की बेकरारी, मगरिब की बेजारी मेरे घर के चप्पे चप्पे से लिपटी हुई है। मशीन की रफ्तार से, सनत की पुकार से मेरी चाल डगमगा रही है। मुझे जमीन पर कदम जमा कर चलने दो, मुझे संभलने दो, मेरा दम घुट रहा है। जरा हटो, मुझे सांस लेने दो, लो तुम भी मेरे साथ हाँप रहे हो। चलो हम तुम अपनी अपनी खामोशी की पनाह में चलें। MashaAllah. I'm so Beautiful. blessed. Dr. Sabia is, mashallah, she was in our first webinar. She's a scholar. She's a wonderful writer. She has written amazing books. And she's also an expert on Iqbal. Jazakallah khair, inshallah. We are going to invite you, चलो बस अभी Dr. खत्म करने Sabia. लगी हूँ। So, चलो हम okay. तुम अपनी अपनी खामोशी की पनाह में चलें, Oh, जहाँ ये आवाजें हमें ताजियाने न मारें, जहाँ ताजा हवा सांस ले रही हो, जहाँ तन्हाई का अनमोल विरसा हो। सच कहो, क्या तुमको सुकूत का जाम नहीं चाहिए? wow. आओ हम कुछ देर गहरे तारों भरे आसमान के नीचे होठों पर उंगली रखकर अहद करें कि खामोशी का लुत्फ याद रखेंगे। MashaAllah. We need that silence among the. जी Okay, Jazakallah खामोशी khair. के नतीजे में बेहतरीन. फिर देखिए, आपका जो टॉपिक था उस हवाले से, खामोशी के नतीजे में जो सेल्फ रिफ्लेक्शन इंसान को बिल्कुल. नसीब होता है, अपने अंदर झांकने का, देखने का, उससे सारे मामलात जो हैं वो तय हो जाते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल। बहुत अच्छी डिस्कशन की, तो मैंने सोचा ये नज़म आपके साथ शेयर करूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं, बहुत जज़ाकल्लाह। बेहतरीन। और इंशाल्लाह these sessions will Beautiful. be continued, क्योंकि ये इतना टॉपिक बड़ा है कि हम फिर इसके इंशाल्लाह एक दो अलग अलग एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट नेहा. नेहा has been raising her hand for a long time. Yes, जज़ाकुमुल्लाह खैर, नेहा. Neha is also, I think, one of our youth, if I'm not. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam. So, firstly, it's so good to see all of you, and Alhamdulillah, it was a great discussion. My question is from a slightly different perspective, like as a young adult, especially someone who has recently moved abroad. I moved to Canada recently, and inshallah, I will be starting my university soon. So I sometimes feel that, like in university or like in an environment when you're in West culture, there are people, socialize and build connections that don't always align with your Islamic values. But obviously, at the same time, you have to connect and network and make the most of the university time. You have to excel academically, professionally. But I believe that there's a lack of confidence, or even though I know that my values are right and I'm stick to it, but still I feel like that, how we can contribute positively to this society without feeling like our principles are holding us back. So Yeah, that's a very, very important and pertinent. And yeah, I think Neha, you got married last year. And mashallah, yes, yeah. so but I will Okay, be starting Neha, my university as a my full-time question student. to you, sorry, I'm Yes. just interrupting, but I'm Yeah, intrigued no, on no, that go one. ahead. Yeah, Your sure. your last comment, are your values holding you back? Not like, to be very honest, like since I moved to Canada, there are so many things that I do. But to be honest, no, they don't hold me back. But There you in a go. You got university, your answer then. no, that's you're right. But I
actually, I want you to answer this thing. Like, when you go in university, for me, it will be a totally different experience. I'm, Yeah. studying in a Okay, this I'll environment. give you my quick experience. When I first came as a student here in 2011 at the University of Derby, I was a mature student. At the age of 32, I was pursuing a second master's, and in my proximity, in my cohort, the other students were somewhat between the age of 19 till 24 tops, right? So अब आप देख लें कि I was probably 10, 12, 15 years older than them in comparison. However, I was the most energetic and the most active one out of the lot. Now, I was literally everywhere. Debate club में मैं मौजूद हूँ, sports activities हो रही हैं, वहाँ मैं मौजूद हूँ, pantomimes करने हैं दिसंबर में, मैं वहाँ मौजूद हूँ. तो मैं ये सोच सकती थी कि क्या मेरी values मुझे पीछे धकेल रही हैं कि मैं इस pantomime में हिस्सा नहीं ले सकती. सारी बात घूम फिर के ना बच्चे intention पे आ जाती है कि अगर हमारी intention pure है and we know the purpose, the higher purpose, why we want to partake in a specific activity, then that intention is obviously going to lead you into the straight path. You will take whatever you have to from a particular activity, right, or a lifestyle, and you will automatically quit whatever doesn't sit well with you. ठीक है ना? तो इसी चीज को intention क्या कहते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात. आप अपनी एक्टिविटीज के साथ लगे रहें जैसे आप लगी हुई हैं, एक्टिव रहें, भरपूर अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करें, सिर्फ अपनी इंटेंशन को प्योर रखें. ठीक है ना? और कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं फील करना कि you're coming from a Muslim household or you're wearing a hijab, each to their own. We're a niche, we are a minority, and even within that cultural minority, we are a further minority because we're Muslims, right? How beautiful is that? Now, that Yeah. also makes us stick out as a sore thumb. But then again, it's people like ourselves who are contemplating and reflecting who are going to be setting the trends rather than only following the trends, है ना? So that's the Yeah. difference. खुद से खुद सवाल पूछे, am I a trend setter or am I a trend follower? As a Muslimah, how do I need to represent myself and what should be my intentions behind any activity? I think Sabah Definitely. is also there, and she's raised her hand. So, Sabah, you Yeah, can yeah. also. All Jazakallah right. khair. The discussion was awesome, mashallah, amazing. But hopeless हमें नहीं होना चाहिए because Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. The later part of this ummah will not be reformed except by that which reformed its earliest generation. क्या हमें नहीं पता the Arabs before Islam were divided by all these things. Okay, all these vices were present in Arab society, but they were reformed by these teachings. So again, the solution is Quran and Sunnah, these two primary sources. Yeah, What I very feel true. is that we need to go back to these two primary sources. Parents, teachers should not only teach what Islam says about, but also explore what if we don't bring the messy reality of this world into the classroom. You know, today's classroom must become safe spaces where difficult issues, social media, identity, relationships, consumerism, जिस पे आपने बात की माशाल्लाह, so they should be discussed through the lens of Quran and Sunnah. अच्छा, teachers should not only teach what Islam says about, but also explore what if we don't do that. उनको बताएं उसके consequences. You know, Prophet was sent as a Bashir and Nadir. Glad tiding के साथ Nadir डराएं भी, consequences बताइए. क्योंकि critical thinker consequences. What if I don't obey opt modesty? If I become immodest, what would be the consequences I'm going to face that? So इस तरह से बच्चों का, because जब हम youth से बात करते हैं तो वो उनके question होते हैं, Miss, why do I do this? Miss, what if I not do this? So what if we do not? For example, when discussing modest dress, don't stop at the ruling. Present real life situation, documentaries दिखाएं बच्चों को, research दिखाएं, case studies दिखाएं, कि बताइए कि hyper sexualization से, body image pressure से, objectification जो women की कर दी है, उससे क्या exploitation हो रही है, क्या होगा उससे? बिल्कुल, और ये सब नजर आ रहा है कि अब उसके लिए हमें सबूत की भी जरूरत नहीं है. जज़ाकल्लाह खैर, दैट वाज ब्यूटीफुल Sabah input. Now Sabah Anwar is also there. So Sabah Anwar, would you like to? So I think Samina को पहले, I think let's take her on first because उन्होंने जाना है, उनकी अभी कुरान एक lesson है, you know. अच्छा, So I'm maybe, not sick. Okay. Samina, can you unmute yourself, please? अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह. मैंने लेट ज्वाइन किया लेकिन वालेकुम बहुत सलाम. अच्छा था आप लोगों का सेशन. तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट नोट किए हैं लेकिन मोस्ट ऑफ देम हैज़ बीन आंसर्ड. लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ.
इट्स अबाउट पावर ऑफ लव ऑफ पेरेंट्स। तो बच्चे बैड कंपनी में क्यों जाते हैं? तो जाहिर सी बात है वो चीज़ घर से नहीं पाते जो उनको चाहिए होती है, और फिर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। आज देखें तो हर दूसरा बच्चा यूरोप में वीड्स ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है। तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि हज़ारों पाउंड खर्च करते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि पेरेंट्स लव इफेक्टिव होता है। हमारी माँ कहा करती थी कि ना 100 जादू ना एक पुछावा। पुछावा मीन्स ब्रेन वॉशिंग। अगर आप बच्चे को प्यार देते हैं, बच्चे से उसकी चाहत के मुताबिक बात करते हैं, अगर आप उसकी नीड्स को मद्देनजर रख कर उसकी मदद करते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, कोई भी चीज़ हो, बैड कंपनी में हो, जिस तरह से पेरेंट्स उसको उस सिचुएशन से निकाल कर ला सकते हैं, मैं समझती हूँ कोई दूसरा नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि वो आपका खून है, आप उसको जानते हैं, आपने उसको पैदा किया। फिर दूसरी गलती हम पेरेंट्स यहाँ पर ये करते हैं कि हमारी जो अपनी ख्वाहिशात होती हैं, जो हम खुद बनना चाहते हैं, एजुकेशन का जरिया हो चाहे कोई और जरिया हो, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात जो है अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि ये बनेगा वो बनेगा। तो बच्चे का जहन कहीं और जा रहा होता है, तो फिर हम उसको डिमोटिवेट करते हैं। जब हम उसको डिमोटिवेट करते हैं तो जो चीज़ हम उससे चाहते हैं कि वो बने, तो वो कर नहीं पाता, तो हम उसको एक्यूज करते हैं। इस तरह से बच्चा बर्बाद हो जाता है। 100%. बिल्कुल, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह फॉर योर इनपुट। Yes, Sister Sabah Anwar, I can see your hand raised if you're there. Otherwise, anybody else who would like to, आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं आप उसको बोल भी सकते हैं और अपनी राय भी पेश कर सकते हैं। Assalamu alaikum, Dr. Amina. Assalamu alaikum, वालेकुम everyone. अस्सलाम डॉक्टर I'm सायरा। sorry, I was finishing up some work for my appointments, but I realized I wanted to join in क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही काम करती हूँ, and it's always an honor आपकी बाकी guests जो आपको follow करती हैं as mothers when they share concerns, especially in the diaspora, UK में, America में, Australia में, and anywhere wherever they may not be in their root cultures or countries. But even back in the root cultures and countries, as you and I often reflect on, I think this whole idea that we as aunts and my peers as mothers are realizing trend setting thought process को बच्चों को educate करना है how to navigate it. ये बहुत important है from a mental health perspective. ये बात already आप बहुत ज़्यादा कह चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक novel example ये दूंगी कि oftentimes बच्चे, young teenagers from let's say 15 to 18, 19 years of age, they are looking at things in a snapshot, just a shorter version of an Islamic lecture or an example in the family or in the community that is provocative. अब होता क्या है कि उनके दिमाग में एक lopsided picture create हो जाती है, when to follow faith and when to try to just keep it as if you are also hoping you can fit in. That is the area where I think the risk is, because that's where many kids will say, okay, if all of my friends are doing something, then I can go ahead and do it too. And I think, like one of the sisters said, that we need to very gently, lovingly encourage our children to look at the pros and cons. तो उसके लिए मेंटल हेल्थ फील्ड से भी हेल्प ली जा सकती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आई टोटली एग्री व्हिच द सिस्टर हु स्पोक बिफोर मी सेड कि consistent and regular loving home environment and parenting is a lot better than having to take your daughter and son to therapy only when things are really out of control, right? So हमें साथ बिल्कुल। साथ बच्चों की तरबियत करनी है. And there are many resources. कुछ मैंने अमालिया के articles यहाँ 3 share किए हैं, which I found relevant to this topic today, from noise to noor. And inshallah, I hope this will be helpful. Jazakallah. Thank you so much as Jazakallah, always. Dr. Saira. Dr. Saira has been a part, and we are, alhamdulillah, presenting Saqi Nama from ISIP Forum, and she was the first, I think, in our webinar as well, hosting it. So, Jazakumullah. Now we have, mashallah, a lot of psychiatrists, psychologists, counselors. So, Dr. Kiran Bashir, I can see the hand raised, and thank you so much, Dr. Kiran, for joining. Yes, please. अच्छा,
मिस डॉक्टर अमीना, एक और भी चीज है कि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है हैज बिन हाईजैक्ड। वो Yeah, पूरा, अब आप exactly. देखें कि या तो वो जो नेचर 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 है, नेचर है इज कंट्रोलिंग द यूनिवर्स, तो अल्लाह से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। तो सबसे हाँ, बड़ी बात कि पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि मेरा बच्चा किस बुक में क्या पढ़ रहा है। सो exactly. इस्लाम That's या सारे सब्जेक्ट्स को इस्लामिकली इंटीग्रेट करना और डेली बात करना, टू नो योर क्रिएटर, कनेक्ट किड्स विद द क्रिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो बहुत। नेचर फोर्स पुश एंड पुल इज वो वर्किंग तो इन द सारा सिस्टम। वो गैर अल्लाह या को बना या दिया है ना, नेचर तो जो है। तो और एजुकेशनिस्ट को आप देखिए चाहिए उसको कि शी वो भी कर बुक्स दिया है, मदर मदर नेचर कर दिया है ना, ताकि वो या तौहीद का कॉन्सेप्ट और अल्लाह का वो खत्म हो जाए। नो, दैट्स अ वेरी, माय होल पीएचडी इज ऑन दैट। इंशाल्लाह आई शेयर द लिंक आल्सो, सो इट्स ऑन द या लाइन आल्सो, तो आप लोग सो जरूर उसको देखिएगा। एजुकेशनिस्ट या आई या वुड लाइक डॉक्टर किरण एजुकेशनिस्ट बशीर नाउ, देन वी कैन टेक इफ यू हैव सम टाइम। जज़ाकल्लाह सबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर किरण। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेशन है बाकी आम सेशंस की निस्बत, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ना 16 to 17 years हो गए इन टीचिंग फील्ड, और रिसेंटली मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ वो एक नेचुरल लर्निंग बेस्ड स्कूल है। हम कुरान के साथ बाकी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को पेरेंट्स के साथ बात करके बच्चों की पर्सनैलिटी को, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टीचर होता है वो एक साइकेट्रिस्ट होता है। उसको बिल्कुल। बच्चों की साइकी को असेस करना होता है कि उसने बच्चे को डील कैसे करना है। जो पेरेंट्स के साथ बात करके जो मुझे लैक लगता है ना, हमारे पेरेंट्स में बहुत ज्यादा लैक है अवेयरनेस का। मतलब कि दे रियली डोंट नो कि बच्चों के लिए क्या ठीक है। उन्हें लगता है कि ठीक है, बच्चा कुछ गलत कर रहा है उसके ऊपर डांट दे, स्नब कर दे, डेट इज ओके। कि कुरान अगर वो पढ़ रहा है तो उसको सख्ती के साथ उसके साथ कनेक्ट किया जाए। जैसे लव ऑफ अल्लाह की बात हो रही थी, लव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही थी। हमारे पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो काउंसलिंग के लिए ना पेरेंट्स के लिए सेशंस होने चाहिए, या पेरेंट्स के लिए कोई इस तरह का इदारा होना चाहिए कि एटलीस्ट पेरेंट्स को वो अवेयरनेस दी जाए ताकि वो आगे अपने बच्चों की तरबियत वैसे कर सकें। हम लोग समटाइम्स ये भी कहते हैं ना कि सिंगल पेरेंट हो तो बच्चे की तरबियत में इफेक्ट होता है। अगर हम देखें हिस्ट्री को, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बीबी हाजरा को छोड़कर गए थे, तो बीबी हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एज अ मदर अकेले ही उनको उनकी ब्रिंगिंग की है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस अब ब्रिंगिंग में फिर लैक होना चाहिए ना, वो एक मदर के साथ था। एक अकेला फादर भी अगर हो, सिंगल फादर भी हो, तो भी वो अपने बच्चों को की बहुत अच्छी तरबियत कर सकता है। सिंगल मदर हो तो भी बहुत अच्छी तरबियत कर सकता है। शर्त ये कि अगर उनको खुद हर चीज का पता हो। तो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स को इन सब चीजों का पता होना जरूरी है कि ये चीज गलत है, या अगर ये चीज ऐसी है तो हमने कैसे करना है, क्योंकि बच्चा तो मासूम है। बच्चे को तो अल्लाह ताला ने तो उसको बिल्कुल प्योर बनाया है ना, उस प्योरिटी के साथ हम उसके अंदर मिलावट करते हैं, वहां पे लैक आता है। फिर चाहे हम स्कूल्स में सब्जेक्ट इंटीग्रेशन करवा रहे हों, एक हम बच्चों को तफसीर अगर करवाते हैं या कुरान पाक करवाते हैं, गौर फिक्र नहीं कराते। जैसे इलामा इकबाल की जितनी भी जो भी है वो सारी की सारी तो उनका कुरान के साथ, अल्लाह ताला के साथ और नेचर के साथ कनेक्शन है ना। खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफर है उनकी पूरी इकबाल में। वो पेरेंट्स को ही नहीं पता कि इकबाल क्या है। पेरेंट्स के लिए इकबाल 9 नवंबर को बस एक इकबाल डे मनाने के लिए है और एक बैतबाजी के लिए, इससे ज्यादा उनके लिए नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में गवर्नमेंट बिल्कुल। ने क्योंकि फ्रेशर्स को देखिए रखने के हमारे लिए। यहाँ वही जो है एक ट्राइंगल है, किरण के पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और जो है बच्चा है। तो ये इसमें जो डिस्कनेक्शन है, क्योंकि टीचर का मकसद है करिकुलम ख़त्म करना, पेरेंट्स का मकसद है हम्म। जान छुड़ाना, स्कूल भेजें, क्योंकि वो अपने आप को केपेबल ही नहीं समझते हैं। तो वो जो है कि चमन में तरबियत गुंचा हो नहीं सकती। तो तरबियत हम्म। में जो गुंचे की तरबियत में अगर आपके पास माँ बाप की शबनम ना हो, टीचर की मोहब्बत ना हो, करिकुलम के अंदर जो है वो अल्लाह का औ ना हो, कि जो जिसको हम्म। अल्लाह कुरान में खशियत कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमाउ, कि हम हम्म। बच्चों को खौफ दिलाते हैं। खशियत ये होती है कि दे कैन सी अल्लाह's नूर, अल्लाह's लाइट, दे कैन हम्म। रिपेल दैट डार्कनेस एंड दैट ऑ कम्स आउट, कि अल्लाह से बड़ा जो जो अल्लाह अकबर। तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एक इशू है। या ओके, सो now we have Dr. Sabiha and Hana Irfan. You want to say something, Hana? डॉक्टर डॉक्टर आमना, ये जो बात करी है ना किरण, तो ये लेक्चर हमने एक पॉइंट उसको डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अमंग्स आवरसेल्व्स आपकी दैट आवाज मुझे तो नहीं आ रही है।
लिटरेचर एंड पोइट्री बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जी हाँ जी। हमारे पहले इकबाल की नज़म हर लेवल पर होती थी बच्चे के लिए, तो लिटरेचर, वो लिटरेचर जो हमने पढ़ा, जिसको पढ़ के हमारी शख्सियत, कैरेक्टर बिल्डिंग हुई, बिल्कुल इकबाल की पोइट्री, वो पोइट्री और वो सब निसाब में से खत्म, करिकुलम में से खत्म कर दी गई है ग्रेजुअली। और वो पुराना जितना भी लिटरेचर है, या वो विच वी कॉल क्लासिक और विच वी वुड डेवलप पर्सनालिटीज, इट्स नो मोर देयर। तो ये भी एक रीजन है, करिकुलम जो है वो बिल्कुल। बिल्कुल आपका ये तो वो देखिए फ्रेमवर्क बिल्कुल राफिया, चेंज। बहुत बड़ा रीजन है। स्कूल यूनिवर्सिटीज में ये 1-1 करोड़ रुपया देकर कॉन्सर्ट्स अरेंज होता है, जबकि इंसान का दिल और दिमाग जो है वो लिटरेचर से बनता है। तो जब आप क्रैप और ट्रैश देंगे, जंक बच्चों को देंगे, तो अल्लामा इकबाल की तो पूरी असरार खुदी में एक चैप्टर है पूरा, और उन्होंने तो कहा है कि ऐसा लिटरेचर जो लिटरेचर फॉर लाइफ ना हो और पोइट्री ना हो, बेकार है। इसीलिए उन्होंने अफलातून, प्लेटो पर बहुत तनकीद की है, उन्होंने हाफिज पर तनकीद की है कि लिटरेचर जो है या तो इंसान को सुला सकता है, उसको एनिमलिस्टिक लेवल पर, जिसको आज हम कहते हैं कि रेप्टिलियन ब्रेन, जो आपका सेक्स है और प्लेजर है और स्लीप है और फूड चाहता है, तो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करके उजागर किया जा रहा है लिटरेचर के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए। आप देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर, और इवन मुझे ये याद है कि हमें जो एक अच्छी थिंकिंग है वो नहीं दी जाती है। और मुझे याद है कि एक मरतबा मैंने अपने स्कूल में एक इकबाल डे पे जो है कोई डिपार्टमेंट से बुलाया था एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट। तो वो मोहतरम और मोहतरमा ने कहा कि भाई आप तो अपने बच्चों को बहुत हैवी चीज़ें देती हैं, बच्चों को तो लाइट चीज़ें बताएं। और इसी तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी कहीं टॉक देने जाएं तो इंटेंशनली कहा जाता है कि बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा सीरियस बात ना करें, जबकि बच्चे इतने सीरियस हैं और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है समझने की, और हम उनको ये क्रैप देते ही इसलिए है कि उनके अंदर वो एक सॉलिड कॉन्सेप्ट हैं वो डेवलप ही ना हो पाए। और ये जिस तरह अभी डॉक्टर सायरा ने कहा कि वो 1-1 मिनट की छोटी छोटी सी उनको चीज़ें दें कि वो हजम ही ना कर पाए बड़ी चीज़ क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब वी आर जस्ट कमिंग टुवर्ड्स आवर एंड। डॉक्टर विल टेक डॉक्टर सबीहा एंड जी, हन्ना। मैं थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी अगेन। बिल्कुल चंद मिनट, जो आप लोग खाने के बारे में बात कर रहे थे ना, कि जी मीडिया ने फूड के बारे में जो है बच्चों के दिलो दिमाग में क्या डाला है कि किचन बंद हो जाए और ये सब चीजें, इस हवाले से मैंने 2 जुलाई 2006 में एक नज्म लिखी थी। करिया करिया कूचा कूचा लज्जत के वसवास बहुत, करिया करिया कूचा कूचा लज्जत के वसवास बहुत, घर की नानी दादी ने पकवान पकाने छोड़ दिए। करिया करिया कूचा कूचा लज्जत के वसवास बहुत, घर की नानी दादी ने पकवान पकाने छोड़ दिए। जो नानी दादी बच्चों के लिए जी शौक से पकाती थी, अब वो कोई नहीं खाता, ना वो डिमांड करते हैं। इस तरह एक कांटेक्ट भी खत्म हो गया बच्चों के साथ। फिर जो बच्चे बड़ों के साथ टाइम नहीं गुजारते, सोने जैसी बातें इनकी हीरे जैसे लोग हैं ये, सोने जैसी बातें इनकी हीरों जैसे लोग हैं ये, नरम नरम पत्तों ने क्यों ये पेड़ पुराने छोड़ दिए, वाह नरम नरम वाह वाह। पत्तों ने क्यों ये पेड़ पुराने छोड़ दिए। और बच्चों के जो वीडियो गेम्स, और ये इसके हवाले से एक शेर है, बर्क अंगेजी खेल बहुत, तफरीह नशा बेजार दिमाग, बर्क अंगेजी खेल बहुत, तफरीह नशा बेजार दिमाग, बच्चों ने रिश्तों के मेहरामेज बहाने छोड़ दिए, वाह बच्चों ने रिश्तों के मेहरामेज बहाने छोड़ दिए। आपकी समातों का शुक्रिया। आपका बहुत बहुत, टॉपिक that's बहुत the जबरदस्त। beautiful. Inshallah will take you. Hannah, I would like you to say something if you want. And we have beautiful comments which I have in front of me about Kulsum. So Hannah, if you want to say anything, then I'll just read the comments. I was thinking about what Neha commented. I think जी she got disconnected, but जैसे ये बात सही है कि it's easier said than done कि हम अच्छी सोबत में हैं, because all of the time it's not possible कि आपको वो सारे अच्छे लोग मिले in, like for example university or college. So I think for
like I was thinking about her question. Okay, I guess is situation where if you are surrounded by a group of people, maybe even for an assignment or whatever, maybe they're not your best friends, but they're your friends, they're your classmates. So उस case में I guess where you have to just do more of the self-checking कि आप बार-बार सोचो कि how are they affecting me and what they're doing wrong, आप उसको पहले अपने दिल में wrong जानो. I guess you just have to keep checking it with yourself. And also one thing कि जैसे जो perfume seller वाली example थी, if you can find that perfume seller अभी, so you have to be that perfume seller yourself, where you Yes. inshallah would Yeah, attract that's a good, those yeah. people who want to be in your soul. Yeah, that's a beautiful point coming from a youth. It means a lot कि आपके अपने अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पहले आप अपने आप को कन्विंस करें. That's a very valid point. और हमारे अंदर ये डाउट्स इसीलिए आते हैं कि we are not convinced. Okay, so here there is one comment from Sister Kulsum. And in the end, I believe how the Prophet ﷺ cleared the polluted noises of society, which was the only permanent solution that made the society filled with Noor, was how he created the state of Medina through which made it easier to follow Islam, because that was the norm and not the odd way of living. And like nowadays, and how even the company of the youth was with the righteous and thriving. Exactly. This is what the main gist is, that Islam is a system. We have disconnected Islam from our social life, our political life, our public life, our education, and we think like जैसे क्रिश्चियनिटी में आ गया था कि भाई आपको अल्लाह से मिलना है तो संडे को चर्च चले जाएं, अल्लाह से मिलना है तो यहूदियों की तरह सैटरडे को चले जाएं, अब मुसलमानों को भी अल्लाह से मिलना है तो जुमे को चले जाएं. और इस तरह अल्लाह इज़ नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन आवर डे टू डे अफेयर्स. तो शेयर फॉर सीजर इज जूलियस सीजर हिज ओन शेयर एंड शेयर फॉर द पोप हिज ओन शेयर. तो दिस इज़ वन ऑफ द सैडेस्ट पार्ट, क्योंकि मैं सीरा का पढ़ रही थी. सो दिस फ्रेंच ऑथर है लामार्टीन, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं. उसने ये कहा है कि वन ऑफ द कमेंट्स उसका ये है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है कि बंदे को उसके खालिक से जोड़ दिया जाए, और फिर रिसोर्सेज की कमी और कोई चीज़ उनके पास नहीं है, और अगर किसी को जज करना हो तो ये जज करना है कि एक फर्द है, वो ये तमाम चीज़ें दुनिया को ऑफर कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो दुनिया के एक ऐसे कोने में है और वो एक काम कर रहा है जो रब के साथ अपने बंदे को मिला रहा है. तो इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है, एंड दिस इज वाई ही इज द ग्रेटेस्ट. अच्छा, उसके बरक्स माइकल हार्ट जब ये कहते हैं 100 ग्रेट मैन में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ग्रेटेस्ट है, नंबर 1 पर है, तो एक्चुअली उनका जो मेजर है वो मेजर सक्सेस से है कि क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में कामयाब हो गए इसलिए वो नंबर 1 है, जबकि ऐसा नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इसराफील अलैहिस्सलाम सूर भी फूंक चुके हैं और तुम्हारे हाथ में एक पौधे की कलम है जिसको तुम बोना जा रहे थे, और ये हमें 100% श्योर है कि उसको बोने के बाद वो कभी भी प्लांट नहीं ग्रो होगा इसलिए कि कयामत आ जाएगी, लेकिन तुम वो कलम बो दो. तो एज जिस तरह अभी सिस्टर सबा सब ने भी कहा कि माशाल्लाह वी शुड नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, वी शुड बी गोल ओरिएंटेड, वी शुड बी एफर्ट ओरिएंटेड, एंड वी शुड कीप ऑन डूइंग थिंग्स एंड डू नॉट लूज होप. तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि वी हैव टू पुट आवर शेयर. तो आखिर में मैं अल्लामा इकबाल का के कुछ अशार पढ़ लूँ, इससे पहले सिस्टर राफिया एंड सिस्टर हिना, योर लास्ट wisdom points if you want to share. I'm done with it already. I need to make a move now, Appa. Inshallah, I'll be joining you in the next session. Yeah, okay. Jazakallah khair. We just have 2 minutes. Sister Rafia. Barakallah feek. Okay, I just wanted to say जो मैंने शुरू में कहा, look within for solutions. Everything is there within us. तो अपने आप को पहचाने, अपनी जात को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने और उनको यूटिलाइज करते हुए अपनी मुश्किलात को ओवरकम करें. Everything is there and connect to Allah for everything. आमीन इंशाल्लाह.
Jazakallah khair for your input, and inshallah we'll see each other next time. So keep in touch and keep connected to Pearls of Iqbal. Also, all of you, मैं थोड़ा सा इकबाल के अशार कुछ लिखे थे वो पढ़ना चाह रही थी, जो इसी से रिलेटेड है कि आखिर में अल्लाह ताला की पहचान और अपनी आइडेंटिटी, अगर ये दो चीज़ जो हमारी खुदी है, दिल में हो सोजे मोहब्बत का वो छोटा सा शरर, नूर से जिसके मिले राज़े हकीकत की खबर, शाहिद कुदरत का आईना हो, दिल मेरा न हो, सर में जुज हमदर्दी इंसान कोई सौदा न हो। और फिर नौजवानों के नाम अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। अमारत क्या शिकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदरी तुझ में न इस्तगनाए सलमानी। अगर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का जोर ना हो, अगर सलमान फारसी की तरह बेनियाजी ना हो, तो ये सारी लग्जरीज बेमाने हैं। न ढूंढ इस चीज़ को तहजीब हाजिर की तजल्ली में, कि पाया मैंने इस्तगना में मेराजे मुसलमानी। इन सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाएं, अल्लाह ताला सब कुछ देगा। इस ग्लैमर की ज़िंदगी से इतना ज़्यादा मोटिवेट या औ में ना आ जाएं, क्योंकि नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजा कारी है। और ज़माने में झूठा है इसका नगी, जो अपनी खुदी को परखता नहीं। इतनी ग्लिटर और ग्लैमरस लाइफ हो लेकिन अपनी खुदी की पहचान ना हो, तो आप बिल्कुल, अल्लामा इकबाल कहते हैं, अंधेरे में हैं। और अल्लामा इकबाल की मोहब्बत का हमारी यूथ से ये आलम है कि ये पूरा एक मैं आपके सामने बंद पढ़ती हूँ, जिसमें ये नौजवानों को क्या कहते हैं। पहले वो अल्लाह से दुआ करते हैं, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यानी हमारे नौजवान आगे आए, 65% ऑफ द यूथ, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देम, और वो आइडेंटिटी क्राइसिस में जाएं, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है। यानी अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही हम इस आइडेंटिटी क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। जिस तरह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की मोहब्बत में एक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड थे, तो वही मोहब्बत, वही आरजू, वही डिज़ायर हमारे अंदर हो, और ये झूठी डिज़ायर से जो एक ग्लैमरस लाइफ की है उससे निकले, सो वी कैन रीगेन आर इंशाल्लाह ग्लोरी एंड आर इंशाल्लाह द identity, and there won't be any crisis inshallah. And we don't need the entire people to change, we need a group of people who can bring change. आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर, थैंक यू फॉर ऑल योर लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स। So inshallah in 2 weeks we are going to have the next session on the same topic with a different inshallah topic, the subtopic. So thank you very much, jazakumullah khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.